So, welcome to the episode 2 of Mass Media and Communication, where I am understanding myself and revising through these videos. So, let us understand mass media, communication, important topics, and important pointers which we must understand. So, today I am going to cover few main topics. What is mass media? What is mass communication? Evaluation of mass media and their types like printing, newspaper, cameras, gramophone, cinemas, radio, television, new media for internet. So let us understand their functions, features and all these definitions. These are very important topics because in this term I have only 3 chapters in mass media. So this is also an important topic which I need to understand. This is personally, if you are a mass media student, is also important to understand because this is the basic. So let us understand what is mass media. Mass media is a medium through which we communicate and it is the plural form of medium. Mass media and mass communication are two different topics. Often people make it mistakenly. They say I have mass media, I have mass communication together, which is not same. Mass communication is the process through which we understand mass media, through which we mass communicate is the mass communication is the process by which we communicate to larger crowd with the help of mass media. Now let us understand both of these in Hindi. Now mass media क्या होता है? मास मीडिया वो है जिसके थ्रू मतलब कि जिसके व्याया हम किसी और से बात करते हैं या फिर दूसरे से हमारे से ज़्यादा पब्लिक से बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ और 100 लोग सुन रहे हैं और मैं उसको माइक्रोफोन या न्यूज़पेपर के थ्रू बोल रही हूँ तो उसको बोलते हैं मास मीडिया. मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया दो अलग चीज़ हैं. मास कम्युनिकेशन जिसमें मैं मास मीडिया के थ्रू मतलब कि मास मीडिया की हेल्प से या मदद से आप लोग से कम्युनिकेट कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूट्यूब से आप लोग के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज क्या सीखा. तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन. और मास मीडिया मतलब कि जिस मीडिया पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ तो यूट्यूब मेरा मास मीडिया हो गया. And always remember to write the examples in your exam. Examples are very important because they don't have marks for writing, but if you don't write it, your marks will be deducted. So mass media example, if you can say by medium, for example, newspapers, telephones, etc. Newspapers, television, internet, social media, etc. And mass communication, teaching, so news reporting, anchoring, news reading, new journalism, typing, news typing, etc. are certain examples. Now let us understand evolution of mass media. Mass media also involve printing. Printing is also known as by from very ancient times. Printing is taking place through which we can understand what is happening in the world. Books, booklets, pamphlets, etc. are example of printing. तो प्रिंटिंग क्या होता है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस से इवॉल्व किया. तो इसमें प्रिंटिंग में हम लोग प्रिंटिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करके आपको शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ तो उसका पैम्पलेट, उसका लीफलेट, बुकलेट एक्सेट्रा मैगजीन्स वगैरह छाप के मैं आपको शेयर कर सकती हूँ. अब न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर वो होता है जिसके थ्रू हम लोग न्यूज़ शेयर करते हैं. अब न्यूज़पेपर आजकल ऑनलाइन भी हो गया है, ऑफलाइन भी हो गया है. लोग पुराने जो हम लोग जेन जीज हैं वो मोबाइल पे रीड करना का रेफर करते हैं और जो हमारे से बड़े लोग हैं लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उन लोग को पेपर पे मतलब कि पेपर चलता है. तो इस डिफरेंट चॉइस. न्यूज़पेपर इज द मीडियम थ्रू विच वी get information of entire world in a one piece of page or a one booklet which is very thin and easily understandable in regional languages. मास न्यूज़पेपर एक मास मीडिया का मूव है जिसमें हम लोग के में प्रिंट हो जाता है ढेर सारी इंफॉर्मेशन, a lot of information in one page or a booklet, thin booklet to understand. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है एक न्यूज़पेपर, अब मुझे 4-5 टॉपिक कवर करने हैं तो अब ये है फॉर एग्जाम्पल हमारा न्यूज़पेपर. ये हो गया न्यूज़पेपर. अब यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दी आपको, फिर यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड लिख दिया.
अब यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दी, उस टॉपिक से रिलेटेड लिख दिया। तो ऐसे न्यूज़पेपर में हमारे पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर न्यूज़पेपर, we have two photos here. Now this photo is about floods in Punjab. So here Punjab floods will be entirely covered. And now this is about Nepal. So Nepal entire topic will be covered here. Now let us understand what is cameras. First camera in the world was made known as camera obscura, in which it works as a pinhole camera. I hope you have studied about pinhole camera, where the light enters like this in a crisscross way from a small hole and creates an inverted image. For example, this is our image, so this will be the result. Now this is not the actual image which we need. Here an artist will be sitting, don't mind my drawing. An artist will be sitting, he will paint or outline this entire drawing. Now let us understand this in Hindi. Camera obscura was मतलब पहला कैमरा था, तो वो कैसे काम करता था। आपने पिनहोल कैमरा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो यही वो उसका बड़ा वर्जन था। फॉर एग्जांपल, मेरी एक यहाँ पे फ़ोटो है या फिर कुछ है जिसको मुझे प्रिंट करना है या उसके फ़ोटो निकालना है, तो यहाँ पे ये जाएगा, लाइट ऐसे जाके नीचे चली जाएगी, लाइट ऐसे जाके ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे एक प्रिंट बन जाएगा, शैडो। ठीक है, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा रहेगा या आर्टिस्ट बैठा रहेगा, कोई भी जो इसको पेंट करेगा। अब हाउ इट वॉज मेड, इट वॉज मेड अप ऑफ, बिजली कर रही है तो बंद। अंडरस्टैंड कि कैमरा ऑब्स्क्यूरा में होता क्या था। कैमरा ऑब्स्क्यूरा एक स्टील का डब्बा होता था या वुडन का डब्बा होता था, जिसमें एक तरफ से स्टील की कवरिंग होती थी, एल्यूमिनियम की कवरिंग होती थी। जो शाइनी लस्ट्रस मेटल रहता था उसको एक तरफ अंदर की तरफ लगा देते थे, बाहर वुडन बॉक्स रहता था, तो उसमें लाइट होती थी, तो इमेज यहाँ पे जो बनता था वो शाइन करता था, या फिर हम लोग को लाइट के थ्रू समझ आता था, जिसको ट्रेस करना ईजी हो गया। अब फिर उसके बाद कैमरा, डिजिटल कैमरा आया, जिसको डिजिटल कैमरा कोडाक करके एक कंपनी ने इंट्रोड्यूस। सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कैमरा, डिजिटल कैमरा। नाउ कैमरा, फर्स्ट कैमरा वाज ऑब्स्क्यूरा एंड हाउ डिड इट फंक्शन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। बल्कि जैसे कैमरा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैमरा ऑब्स्क्यूरा क्या था या फिर कैसे काम करता था, तो दिस विल बी आंसर, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने वर्ड्स में लिखना होगा। और फिर उसके बाद फिर व्हाट वाज द फर्स्ट, विच वाज द फर्स्ट मॉडर्न कैमरा और डिजिटल कैमरा। तो कोडाक करके एक कंपनी थी जिसने फर्स्ट डिजिटल कैमरा बनाया, फिर वो सोनी ने इवॉल्व किया, अब कैमरा लाइन में सोनी का नाम है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामाफोन। आपने ज़रूर सुना होगा कि दादा दादी से कि हमारे घर पे ग्रामाफोन होता था, जिसमें आप लोग भी पुरानी मूवीज़ में देखा होगा या फिर अभी की भी मूवीज़, जिसमें कई हीरो हीरोइन अगर एंटिक्स कलेक्ट करते हैं, मतलब कि पुरानी चीज़ें, तो उनके पास एक ऐसे होगा, डब्बा सा रहेगा, उस पर एक ऐसे स्पीकर का टाइप का बना होगा, जैसे आप लोग ने शादियों में भोपा बोलते हैं हिंदी में। नाउ आई डोंट नो इन इंग्लिश व्हाट वी कॉल इट, बट इसको पहले फोनोग्राफ बना था, जो एक थॉमस बर्लिनर ने बनाया था, और फिर उसके बाद एक जर्मन लेडी थी, एमिली बर्लाइनर, उनने इसको ग्रामाफोन को बनाया। अब ग्रामाफोन बहुत बेनिफिशियल रहा, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर भी हुआ, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या करते थे, जैसे आप पहले के टाइम पे आपको गाने सुनने के लिए कहीं शोज़ में जाना पड़ता था, उसके लिए टिकट खरीदनी पड़ती थी, मगर अब क्या हुआ, ग्रामाफोन आ गया, तो वो आप उसमें अपना सीडी डाला, आपको जो गाना पसंद है वो लगाया और अपना मस्त सुनते रहे, अपनी कंफर्ट जोन, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग। तो हो गया ये ग्रामाफोन। अब अंडरस्टैंड करते हैं सिनेमाज। अब सिनेमाज तो अभी भी चलता है, थिएटर हम उसको जानते हैं कि मूवीज़ देखने के लिए। तो पहला जो सिनेमा आया था उस टाइम पे जो रिकॉर्ड हुआ था वो डिजिटल कैमरा से फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी चलती हुई ट्रेन पे। तो लोगों को देख के वो लगा कि ये ट्रेन सही में आ गई, लोग डर गए थे। मगर फिर उसके बाद धीरे धीरे सिनेमा में इवॉल्यूशन आया, कलर्स आए, न्यू एडिटिंग हुई, वीडियो, सॉन्ग, विजुअल्स आए। मगर जो पहला क्या मूवी बनी थी या सिनेमा में कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था, तो इट वाज साउंडलेस, ऑडियोलेस, ओनली वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड। तो आपने चार्ली चैपलिन भी देखा होगा, उसमें भी आवाज़ नहीं है, बस एक्शंस हैं, तो वो उस टाइम पे था। तो यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सिनेमा वी कैन से अबाउट चार्ली चैपलिन इज द मोस्ट हिलेरियस एंड करेक्ट एग्जाम्पल। Now
गो टू रेडियो। अब रेडियो एंड टेलीविजन एक ही टॉपिक की तरह कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में भी एक ही टॉपिक, मैंने इसको डिफरेंटली किया है क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग में वो अलग अलग है। सो रेडियो को पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज रेडियो। रेडियो एक मशीन है थ्रू विच ऑडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड्स ये साइंस वालों का है। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो आई कैंट एक्सप्लेन यू वेरी वेल। सो लेट अस अंडरस्टैंड रेडियो फंक्शन क्या है, रेडियो का इम्पोर्टेंस क्या है। रेडियो हुआ ग्रामोफोन के बाद, तो उसमें भी ऑडियो आता था, मगर इसमें क्या था, रेडियो जॉकीज, रेडियो इंस्ट्रक्टर, तो उसके थ्रू हम लोग को एंटरटेनिंग ज़्यादा लगता था, और उसमें म्यूज़िक ही नहीं, पॉडकास्ट, न्यूज़, आप कुछ भी सुन सकते थे। तो रेडियोज बिकम मोर प्रोमिनेंट इन दोज टाइम। फिर उसके बाद आया हम लोग का टेलीविजन, जो आज भी हम जानते हैं टीवी के नाम से। स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं नया, बट टेलीविजन जो पहला टेलीविजन था वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन था। सो आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना उनके टाइम में टीवी कैसा होता था, वो आपको अच्छे से बताएंगे। देन आई विल टेल यू अबाउट इट नाउ इन इंग्लिश, क्योंकि हिंदी वाले तो अपने मम्मी पापा से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो। इंग्लिश में आई विल टेल यू डिफिनेशन हाउ टू राइट। टेलीविजन्स आर द न्यू with which having auditory and visual means so that it is easier to understand and more entertaining and eye catching। मतलब कि टेलीविजन जो थे जिसमें ऑडिटरी एंड विजुअल दोनों साथ में आए। सिनेमाज का मिनिएचर वर्जन, मतलब मिनिएचर वर्जन ऑफ सिनेमाज। इससे सिनेमाज का डिक्लाइन होना चाहिए था, मगर सिनेमाज और प्रोमिनेंट हो गए और टेलीविजन एक्सपेंसिव हो गए। फिर उसके बाद आया न्यू मीडिया। अब न्यू मीडिया इंटरनेट, ये मोबाइल फ़ोन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सब न्यू इंटरनेट में आते। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके थ्रू मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो भी एक न्यू इंटरनेट का मीडियम है, यूट्यूब। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अब फीचर्स एंड फंक्शन। अब ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि फीचर्स एंड फंक्शन आपको ईच के बारे में आपको 5 मार्क्स के आ सकते हैं। तो प्रिंटिंग का फीचर्स क्या है। प्रिंटिंग में हम लोग इसको न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग को वन कंसिडर करेंगे। सो जो प्रिंट मीडिया है प्रिंटिंग का, उसमें क्या होता है कि एक डिसाइडेड टाइम लगता है या एक सर्टेन टाइम गैप रहता है। फॉर एग्जांपल कई न्यूज़ेस एक दिन में भी छप के आ सकते हैं, कई मैगजीन्स एक हफ्ते में, कई महीनों में, कहीं 15 दिनों में, कहीं 14 हफ्तों में। मम्मी ये यहाँ पे मुंह बना रहा है। अब तो मैं बैठा हूँ। जा रूम में जा, लेटती हूँ। चल मेरे पीछे लेट। उस साइड मोदी वालों की साइड मुंह बना के रहने। हम लोग प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर्स को एक साथ लेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूज़पेपर बनते हैं। मगर इन एग्जाम अगर आपको इवैल्यूएशन ऑफ मास मीडिया पढ़ा तो प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर अलग है, मगर अगर प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर का हम लोग जब उनका फीचर्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो इट इज़ सिमिलर। तो प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर्स में डिफरेंस क्या रहता है। प्रिंटिंग में आपको मैगजीन्स, बुकलेट्स ये सब आ सकते हैं, और न्यूज़पेपर में ओनली न्यूज़पेपर आएगा। तो प्रिंटिंग एंड न्यूज़पेपर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कई न्यूज़पेपर आपको 15 डेज में, कई 14 डेज में, कहीं आपको एक वीक या कहीं आपको 1 डे में मिल जाएंगे। और वही सेम विथ मैगजीन्स आता है या बुकलेट्स या पैम्पलेट्स, कुछ भी हो, तो आपको एक डिसाइडेड टाइम रहता है या डिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है जिसके थ्रू आपको अंडरस्टैंड करना रहता है। तो ये आ गया प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर में। फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि एक साथ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे वो मिल जाएगी। आपको डिसाइडेड इन्फॉर्मेशन, अगर आपने सर्टेन मैगजीन डिसाइड की है तो आपको उससे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा। इजीली अंडरस्टैंडेबल रहता है क्योंकि जो प्रिंट मीडिया रहता है वो सबके रीजनल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ तो मुझे मराठी में आएगा, अगर मैं गुजरात में रह रही हूँ तो मुझे गुजराती न्यूज़पेपर भी आएगा, और या फिर मैं बंगाल में रह रही हूँ तो बंगाली। तो हर रीजन के हिसाब से उनकी प्रिंटिंग भी चेंज होती है। तो दिस इज ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। नाउ कैमराज का मतलब होता है कि हम लोग फोटो शूट करते हैं। तो कैमराज मास के लिए कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि कई लोग अपने फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या कुछ करते हैं तो उसको थ्रू न्यूज़पेपर पे अटैचिंग या कहीं वो लोग सेल करते हैं, या फिर कई बस अपलोड कर देते हैं। लोग उसके डीपर मीनिंग, एडिटिंग वगैरह का मतलब निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नेचर का एक बर्ड का फोटो डाल दिया, नहीं एक टाइगर का फोटो डाल दिया, टाइगर, अगर मैंने टाइगर का फोटो डाल दिया
अब उस टाइगर के बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना रहेगा। अब इस टाइगर में कौन सा कलर का टाइगर है, या स्ट्रिप्स कितनी है, या कोई यूनिक है, इसमें कुछ नया है कि वही सेम और डरावना सा टाइगर है। अब ये भी हो सकता है, या फिर किसी को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ वाले रिसर्च करते हैं, कई इमेजेस स्पेसिफिकली लेते हैं। और डिस्कवरी चैनल आपने देखा ही होगा बचपन में, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कैमरास का मतलब। सो ये हो गया हम लोग का कैमरास। अब ग्रामोफोन्स किसने बनाया था, कैसे बना था, मैंने आपको ये सब बता दिया है। तो लेट्स गो विद फीचर्स एंड फंक्शन। अब ग्रामोफोन्स आर दिस का फीचर क्या है कि ग्रामोफोन में हम लोग को कंफर्ट रहता है, इजीली एक्सेसिबल अभी नहीं है मगर उस टाइम पे इजीली एक्सेसिबल था। मतलब कि जो मिडिल क्लास थे और हायर क्लास थे वो लोग एक्सेस कर सकते थे, पुअर भी एक्सेस कर सकते थे थ्रू रेंटिंग इट। तो ये इजीली एक्सेसिबल था उन लोग के टाइम पे और ये बहुत अच्छा दिखता था, स्टाइलिश लगता है। आपका लोग तो ना स्टाइल से लेते थे। अब ग्रामोफोन और उसमें अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप स्लो म्यूज़िक, फास्ट म्यूज़िक, जैज म्यूज़िक कुछ भी बजा सकते थे सीडीज़ के साथ। फिर उसके बाद सिनेमाज आर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ये आप लोग को डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कई सीन्स, फॉर एग्जांपल यू हैव सीन मेनी सीन्स, मतलब कोई बैकग्राउंड रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कश्मीर ले लेते हैं, तो कई मूवीज़ लाइक दिल तो दीवाना, हाँ नहीं आया वो मूवीज़ का मैं नहीं बताऊँगी आप लोग को, आप लोग खुद बताना। मतलब कि एक जिसमें मूवीज़ में आप लोग कहीं जाते हो, कश्मीर का है तो वहाँ का सीनरी आपने देखा होगा, तो वही सीनरी आप कोई मूवी में देखते हो तो अरे वाह ये तो मैंने देखा था, ऐसा आता है। तो यही होता है सिनेमाज में, आप रियलिटी से कनेक्टिविटी फील करते हो। और फिर उसके बाद सिनेमाज के थ्रू आपको मिरर टू द सोसाइटी, कई मूवीज़ ऐसी रहती है जो हम लोग को सोसाइटी के बारे में, इविल डूइंग रहती है उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद रेडियो। अब रेडियो क्या होता है, रेडियो इजीली एक्सेसिबल है। आप लोग अपने कार्स या कहीं जाते होंगे तो अभी आप लोग यूट्यूब पे बीच में ऐड भी चला था सारेगामा, तो उसमें जो एक ऐड था सारेगामा करके, वो आप लोग को म्यूज़िक का रेडियोस और वो पुरानी चीज़ें वापस ला रहा था। तो रेडियो का क्या रहता है कि एंटीना के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो उसमें क्या रहता है, इजीली अवेलेबल रेडियो जॉकीज रहते हैं या रेडियो इंस्ट्रक्टर रहते हैं, तो जिसके थ्रू इंटरेस्टिंग होता है। जॉकीज जो बताते हैं, आप रेडियो को स्टेशन पे कॉल करके अपने डिज़ायर म्यूजिक भरवा सकते हो, या कभी आपके पास प्रैंक कॉल आते होंगे जो एंटरटेनिंग रहते हैं। कई लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है मगर इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लो। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल रेडियोज़ में स्टेशन रहते हैं, जब रेडियो स्टेशन प्लान होते हैं तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आती हैं, क्योंकि रेडियो स्टेशन जब प्लान होते हैं तो रेडियो जॉकी के लिए, रेडियो के वो सब मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, गाना प्ले करने के लिए, उसका सेटअप देखने के लिए, उस सब के लिए हम लोग को चाहिए रहता है। तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होते हैं। अब हम सबका फेवरेट टेलीविज़न, जो जेनजीज होंगे, मतलब कि उन लोग जो टेलीविज़न देख के बड़े होंगे, टीवी पे छोटा भीम और बुदा बुड़बक, डोरेमोन, शिनचैन, ये कितने सारे कार्टून देख के बड़े होंगे। तो टेलीविज़न हम लोग का फेवरेट है जेनजीज का। अब तो आ गया है स्मार्ट टीवी, उसके भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इट इज़ अ चीपर वर्जन ऑफ सिनेमास, क्योंकि आप मूवीज़ हमेशा देखने जाते होंगे मगर उसमें क्या रहता है कि आपको डिसाइड रहता है कि यही मूवी इतने से इतने टाइम तक। टेलीविज़न में क्या है, अब आप टेलीविज़न में अपने मन पसंदीदा शो एक साथ में वाइड रेंज रहती है और फिर उसके बाद फिक्स टाइम स्लॉट रहता है। तो आप अपना टाइम स्लॉट जान के कि उसमें क्या आपका फेवरेट आता है तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो टीवी पे। फिर उसके बाद ये क्या रहता है, उसमें वाइड रेंज रहती है, वाइड वैरायटी रहती है और आप बहुत कुछ कर सकते हो टेलीविज़न में। अब स्मार्ट टीवीज़ आ गए तो अब उस पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चला सकते हो। जैसे मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो वो टीवी पे भी आ सकता है। ओके, नाउ न्यू मीडिया। हम लोग का सबसे प्यारा इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब सब इस पे है। तो इसका न्यू मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यू मीडिया कई जगह पे इसको इंटरनेट को ही रेफर करते हैं, तो इंटरनेट में गूगल, विकिपीडिया ये सब भी आता है। तो अब न्यूज़पेपर्स जो रहते हैं वो भी न्यू मीडिया में आ जाते हैं। कई जगह पे प्रिंटिंग वाली जो कंपनी होती है, जैसे कई प्रिंटिंग मीडिया ने अपना न्यू फ़ोन पे ऐप्स लॉन्च कर दिए, जिसके थ्रू न्यू मीडिया के थ्रू लोग कम्युनिकेट ज़्यादा करेंगे। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी इन्फ्लुएंसर्स इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और इसके चैप्टर में यही सब है।
मगर ये चैप्टर थोड़ा वाइड है। अगर आप चैप्टर रीड करने चाहेंगे तो ये उसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था, मैंने जो आप लोग को प्रोवाइड किया और मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताया। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैप्टर को आप ज़रूर रीड करिएगा।